अनुज ये चालू हुआ हम 3 लोग हैं जो लिखते हैं इस स्टडी को। मैं मतलब मेरे ऑफिस में बैठते हैं, मैं, ध्रुव मेहता और श्रीनाथ जो मेरे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ओके। सो श्रीनाथ इज द सो इस बार हम सबसे पूछे थे क्या स्टडी करें। सो 2-3 ये था कि व्हेन टू सेल, कोई मार्केट इज ऑन हाई, सो दैट वाज वन टॉपिक। सेकंड वाज द टर्न अराउंड। सर वो बोला कि सर वी हैव नॉट डन ऑन टर्न अराउंड, मतलब लेट्स स्टार्ट। So we ran the data first time. We realized it's very tough subject. Turnaround is very tough subject. Then we found a book, and in that book he talked about how to make money. This fund manager, I'm forgetting his name. He makes money only by turnaround stocks in US, and he's written a 30-page book on how to make money out of turnaround stocks. I said we got a framework, and now let's work on this. Okay. So there he talked about whenever any stock falls by more than 50% from their recent highs, all-time high or recent high, Okay. the last 5 years high. In India, 5-year high is the all-time high always. So generally. So when it falls more than 50%, so then you have to find. See, there could be hundreds of stocks like that, but in them you have to find bruised blue chips and busted growth stocks. When you find these 2 category stocks, then you go about completing the process of buying. But then we said this, let's pick up the bruised blue chip part. I mean, rather than doing everything, so we said turnaround of bruised blue chips is the only segment we'll do it. Next time, if time permits, we'll do the busted growth stocks. Okay. So this time we picked up bruised blue chip. Okay. Now then the first problem was, what is a blue chip? व्हाट इज अ ब्लू चिप? मैं उसी पे आने वाला था कि ब्लू चिप को हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्या ये सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या ब्लू चिप है? और क्योंकि ये तो हाइंडसाइड में पता चलता है कि क्या ब्लू चिप था या क्या नहीं blue था। chip has to be defined, and I think everybody can have a different definition. But for the study, I mean, with my experience and all, I said any company which has earned more than 20% for last 10 years, ओके। and of size, both. So that company will term it as blue chip because 20% आपने 10 साल कमाया, मतलब आपने कुछ गुदा है to stand in the market, and you are of the size. So we said we'll look at only top 250 companies, so that gives a sense of size, and 10%, 20% ROE, so that gives about 80-90 companies. Then the guys, they said there are a lot of large companies, very large companies like Reliance and all, they're not 20% ROE because of a lot of investments they are going through. So then how do you exclude them from blue chips? So then we said let's take all the Nifty 50 companies, irrespective of the ROE level. Okay. We'll take it as a blue chips, chip, huh. you know, because they have their own kind of stature to be this thing. So we'll take them as blue chips, and any company which has this is part of the rest of the 200 and more than 20% ROE for last 10 years. So we got 107 companies, and that's how we set the definition for blue chips. Now, what is a bruised blue chip? Is the company in last 5 years, whatever high is, in now after the 5 years complete, it is fallen by more than 50%. 50%, okay. Till 50% it is correction. Okay, but below 50% it's bruised. Bruised. Now it is seriously bruised because somebody thought, I mean, in a market, if somebody thinks that if a stock is traded at $1,000, so somebody thought the value of the company is 1,000 rupees. Now it has fallen to 500 or below. It means that company is thoroughly bruised, and there must be some reason behind that. Okay. Either earnings disappointment or misallocation or competition or something must be there. So then we went about analyzing the sources of trouble and what could be the remedy for that. Okay. And how do you buy them. ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में हम काफ़ी स्टॉक्स के नाम डिस्कस करेंगे, वो प्योर एक एग्जाम्पल के तौर पर है, उसको किसी तरीके से रिकमेंडेशन ना समझा जाए, ये पहले डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। रामदेव सर, इसमें एक चीज़ है बस, अब मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे येस बैंक था, या इंडिया बुल्स हाउसिंग था, या एक समय पे जेट एयरवेज था, सुजलोन था एक समय पे, ये सारे, हालांकि सुजलोन ने भले ही कम बैक किया हो, ये सारे के सारे एक समय पे, बट दे वर नॉट ब्लू चिप्स। अच्छा, दे वर नॉट ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स पहला ये निफ्टी के स्टॉक्स थे, लेकिन यदि निफ्टी के स्टॉक थे तो यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली इफ दे हैड फॉलन फ्रॉम देयर, दैट एंड सी इट इज completely not infallible, but they have to be blue chip. Yes Bank did it make to the Nifty? Yes Bank Nifty का हिस्सा था. Yeah, so definitely it would qualify as a blue chip, and yes, I mean it didn't recover. So मेरा सवाल ये है कि कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि ये ब्रूज्ड है और कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि नहीं, तो स्टोरी खत्म हो गई है यहाँ पर. देखिए क्या है, अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली स्टैटिस्टिकल.
you have to at the time see, if something is bruised or hurt by 50-60%, it means it makes it interesting. Second, it is a blue chip. Yeah. In fact, I would rather prefer more than the size. I would go by 20% ROE. Okay. Okay, that's my preferred mode. So that makes me very comfortable because somebody has earned 20% for last 10 years. वो X of Nifty भी हो सकता है वो stock. X of Nifty also. Any stock actually as a framework. Okay. That makes me very comfortable. ठीक है. So that stock, why it has fallen? I mean, what has happened? Is it internal to the company or is it external to the company? You know, so you have to figure out that and then finally take a judgment whether this company is going to survive in a given situation. Is it going to survive? And more importantly, is it going to prosper? So generally, the companies which are blue chips, they have very strong tendency to come back. Okay. You know, because it's like a Rishabh Pant getting hurt. हाँ. अब ऋषभ पंत मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया, 2-3 साल के लिए बाहर है, लेकिन आया तो रेड ही मारा ना वो, बिल्कुल, पूरा कैप्टन बन गया है. हाँ. तो जैसे मान लो विराट कोहली है या कोई भी सचिन तेंदुलकर, इतने दो चार इनिंग्स में मान लो 0 बना दिया, इसका मतलब सचिन डजंट बिकम यूजलेस और विराट डजंट बिकम यूजलेस. व्हेनेवर ही कम्स बैक ही विल हिट अ सेंचुरी अगेन बिकॉज ही नोज द गेम, ही नोज बैटिंग and he can bat in toughest of the situations. So ये जो जितने जो 20% ROE के blue chips होते हैं, they have that core capability. You know, so when they come back, not only they come back to retrieve their last position, then they go for the kill. जैसे महिंद्रा 600 रुपये से गिर के 300 हुआ. बिल्कुल. उन्होंने चेंज किया मैनेजमेंट, उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर बदला, बहुत सारे रिऑर्गेनाइजेशन किए. जब वापस आए तो 300-600 नहीं हुआ, 3000 हो गया. एंड स्टिल काउंटिंग. नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटो कंपनी इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एटलीस्ट. इट इज मोर एक्सपेंसिव देन मारुति, मोर एक्सपेंसिव देन टेल्को. सो व्हाट आई एम बेटिंग ऑन इज द फर्स्ट. आई मीन आपका क्वेश्चन सही है, विच वन टू लिव, विच इज ब्रोकन. सिर्फ ब्रूइज्ड और ब्रोकन में फर्क है. हाँ, ब्रूइज्ड और ब्रोकन में. हाँ, रामदेव सर, आपने क्योंकि बात करी ही है महिंद्रा की, मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपको मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लिखने में पेन भी हुआ हो. वो आउटडेटेड स्ट्रैटेजी में आपने हीरो मोटोकॉर्प आपका नाम लिया. मैं जानता हूँ कि आपका फर्स्ट लव हीरो मोटोकॉर्प है ना, आप काफ़ी हर्ट फील हुए होंगे उसके बारे में, लेकिन ये भी फैक्ट रहा कि वहाँ पर शायद वो थोड़े पीछे रह गए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कमबैक तो रहा है. आप हीरो मोटोकॉर्प में भी ये कमबैक. हाँ, एग्जैक्टली. गिवन एज मोर एज पॉजिटिव कि भाई देयर इज अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट. फ्रॉम 2400 स्टॉक इज 5000, इट्स ऑलरेडी डबल इन लास्ट 1.5 years. So there is a massive comeback on the change of the management and he has his own strategy. तो ऐसी कंपनियों में मतलब जहाँ पर आपने इतना वेल्थ क्रिएट किया हो, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड रही हो, सब कुछ रहा हो, इसमें फिर आप को ये यकीन, कब तक ये यकीन रहता है कि नहीं ये ब्रूज्ड है और ये कमबैक करेगी? जैसे हीरो मोटोकॉर्प फॉर एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस था कि ये कमबैक करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाउट नहीं था. जैसे लाइक इंडियन होटल एट $70, आई हैड नो डाउट. DLF एट $70, आई हैड नो डाउट, बट आई डिडंट हैव फ्रेमवर्क. मेरे पास फ्रेमवर्क नहीं था. मैं दिल्ली में जाके कहीं पर भाषण भी दिया हूँ कि मैं बोला भैया तुम अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बेच दो, 70 रुपये में DLF खरीदो. बट वो सिर्फ एक मतलब एक वन ऑफ डिस्कशन था. अभी मेरे पास फ्रेमवर्क है. सी दिस स्टडी इज मोर अबाउट द फ्रेमवर्क देन एग्जाम्पल्स. भाई हाउ टू थिंक अबाउट अ ब्लू चिप इन ट्रबल. तो इसमें वाई ब्रूज्ड में आपने 2-3 चीज़ें की हैं. एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक तो है स्टॉक रिलेटेड, एक है कंपनी रिलेटेड कि एक बार तो कई तो स्टॉक ही गिर जाता है, वो अलग फैक्टर है. एक कुछ कंपनी रिलेटेड है. तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है बेसिकली? हाँ, सीधे स्टॉक जो स्टॉक रिलेटेड है उसमें इट कुड बी से कोविड में बाजार ही 50% गया गया. ओके. तो स्टॉक ही 50-60% गिर जाएगा ना. हाई से सब कुछ, मतलब नथिंग इज स्पेयर्ड एट दैट टाइम ना. हिंदुस्तान लीवर और 2-4 कंज्यूमर स्टॉक को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे बैंक और सब पिट जाते हैं. सो एट दैट टाइम स्टैटिस्टिकली तो 50% गिर गया ना. सो इट हैज बिकम ब्रूज्ड ब्लू चिप. ओके. एंड उसका रेमेडी एक ही है, लेट द मार्केट कम बैक. एंड व्हेन द मार्केट्स कम बैक, ऑल द जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ था, GFC में ऐसे हुआ. तो बैंक्स और दाम 1 बुक बिलो बुक इस टाइप का हो गया था. सो लाइक आई थिंक HDFC हैज आल्सो फॉलोन बिग टाइम एट दैट. यस. सो उसका रेमेडी एक ही है कि मार्केट मस्ट कम बैक एंड मार्केट डू कम बैक. आई मीन इफ यू सी जब भी बाजार गिरता है इस ढंग से तो अगले 12 महीने में काफ़ी रिकवरी आती है. कोविड में हमने देखा, फरवरी में ऑल टाइम हाई, मार्च में ऑल टाइम लो और जून जुलाई में वापस. So during that period you get an opportunity to buy Telco or Indian Hotel or Mahindra, all sorts of things you get it. I mean throw away on sale होता है पूरा का पूरा. So that is market related, but that's not the main thing.
मेन थिंग इज अदर कंपनी रिलेटेड। कंपनी रिलेटेड। नाउ कंपनी रिलेटेड हैज आल्सो गॉट दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। हाँ। एक इंटरनल टू द कंपनी और एक्सटर्नल टू द कंपनी। बिल्कुल। एक्सटर्नल कैसे? कंपटीशन आ गया, भैया आप शांति से बढ़िया पैसे कमा रहे हो, चला रहे हो दुकान, अब मालूम पड़ा कि भैया नए बंदे को आके, अब जैसे टेलीकॉम है, जियो आके बोलता है नहीं मेरे को नंबर 1 बनेगा, मुकेश भाई बोलते हैं नंबर 1 बनना है, तो भाई पूरा डिस्टर्ब हो तो गया। फ्री में दिया आपका मतलब 1 साल तक जैसे मतलब पूरा 10 साल तक, मतलब 5-6 साल तक लहू लुहान हो गया पूरा बाजार। यू नो, सो 12 प्लेयर घट के 3 प्लेयर रह गए। 3 प्लेयर रह गए। और उसमें भी क्या है, फिर आई वांट 50% मार्केट शेयर, नंबर 1, तो 0 to नंबर 1 किया आपने, तो उसमें क्या हुआ, जो पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी था वो खत्म हो गया। तो स्टॉक जैसे भारतीय हुए थे वो तो मतलब 200-250 कुछ भाव गए थे, मतलब बिल्कुल। तो वहाँ से आपको 1500 का भाव गया। लेकिन वो समझ होनी चाहिए भाई ये ब्रूज्ड है अभी, क्योंकि भारतीय में आई मेड मैक्सिमम मनी यू नो इन 2003। आपने तो आईपीओ से कम प्राइस पे लिया हुआ था। यस, आधे भाव इसमें खरीदे थे। तो वो जो एक था जर्नी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी था। सो दैट इज एक्सटर्नल टू द कंपनी। कंपनी ने गलती नहीं किया, कंपनी। अच्छा, दूसरा क्या, कंपनी भी गलती करती है। जैसे कंपनी जो है, जैसे मिसअलोकेट, बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कंपनीज, सक्सेसफुल कंपनीज, दे मिसअलोकेट कैपिटल। जैसे सीजी पावर। हाँ, सीजी पावर तो मिस मैनेजमेंट की मैं बोलूँगा, बट जैसे आपको महिंद्रा का ले लीजिए आप, तो जैसे सैंगयोंग खरीद लिया आपने, अब वो टाटा स्टील कोरस खरीद लिया, कोरस खरीद लिया, तो ये सब जो है ना, मतलब भाई आपका एम्बिशन है, कोई बैंकर आके समझाता है कि 3% में पैसा मिलेगा, आप पैसे कमाओगे, और लोग चले जाते हैं, उनको मतलब दे आर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट हियर, सो वी कैन डू इट देयर, बट somehow it doesn't work. Then it creates problem. Then getting out is a big problem, and it saps all the energy of the company. But then it still remains a blue chip. Like tractor में number 1 महिंद्रा था ही, बिल्कुल। So that was a cash cow. Then SUV से भी फोकस कम हो जाता है. So then they sold off SsangYong. So that is completely internal to Mahindra. Okay. So there are problems. अच्छा, there can be all 3 types of problem in one company only. There could be internal problem, there could be external problem, and there could be market related problem. So what happens is finally when the problems come together, और उसके साथ में बाजार भी डूब जाता है कोई कारण से 20-25%, तब आपको जो है ना सब फोकट के दाम में शेयर मिलते हैं। बट अब वो कैसे होगा, कैसे प्ले आउट करेगा, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन आपके पास में फ्रेमवर्क है कि क्या क्या तरीके से कंपनी के शेयर गिरते हैं। बिल्कुल।